यही समय है, सही समय है। कैसे लगता है आपको यही समय सही समय है? जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखाया है। साउथ पोल चंद्रमा पे चंद्रयान मिशन की सफलता, शिव शक्ति पॉइंट पे जाने का। इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? यही समय है। भारत ने आज तक पिछली बार मेडल जीते थे एशियन गेम्स में 70 मेडल्स, उससे पिछली बार 2014 में 57 मेडल, और अब की बार 100 पार होने वाले हैं। यही समय है। तो भारत के खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार। दुनिया भर के देशों में देखा जाए, मैं तो कहूं अगर मान लीजिए यहीं पे कुछ हो जाता है, चाहे चांसलर साहब हरिमोहन गुप्ता जी भी चाहेंगे, अगर दो लोग लड़ लेंगे तो उसको सुलझाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन किसी दूसरे देश में युद्ध चल रहा हो, बॉम्बिंग हो रही हो, मिसाइल चल रही हो, रॉकेट लॉन्च हो रहे हों, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, और उसके बीच में 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे हों, और किसी देश के प्रधानमंत्री फ़ोन करके उन दोनों देशों के राष्ट्रपति से कहें कि युद्ध विराम करना होगा क्योंकि भारत के छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकालना है, तो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कॉल पर ऑपरेशन गंगा चला। यही समय है। यही नहीं, जब हम सत्ता में आए 2014 में, they were telling us India is among the fragile 5 economies of the world because the policy paralysis to the other corrupt systems of the former government led to a situation where Indian economy was on the verge of, the world looked at it like collapsing, and they started withdrawing the investments and all. Now, that was a tough situation in a country like India with 1.4 billion people. And from the fragile 5 economies to the 5th largest economy of the world, this shows that reform, perform and transform what Prime Minister Modi said, and he has finally delivered. India is the 5th largest economy of the world today. Yahi samay hai. And in the last 4 years, time and again, there were so many surveys done by different agencies, and it is only one person who is coming time and again with 76% or the 78% popularity rate as the world's most popular leader, and his name is यही समय है। तो भारत के लिए इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पेस, साइंस टू स्टार्टअप्स। अब इसमें देखा जाए, साइंस का 2 जगह पे बहुत बड़ा रोल आया है। एक, 2 साल पहले जब कोविड आया तो दुनिया के सामने, if I have to say this and others will also agree, in the last century the biggest challenge for the mankind was the COVID-19 pandemic. Nobody had the answer in the initial years. I still remember we had the parliament session running and Prime Minister called a meeting and he said, what is to be done? The numbers are increasing. India may get impacted because of this. What should be done? He took everyone's view. Nobody knew what is going to happen. And at the midnight, the lockdown was announced. And the way he took decisions one after another, and the way he believed in the scientists of India and gave the entrepreneurs the opportunity to come out with the vaccines. Though many such leaders, the opposition leaders in the country from Congress to Samajwadi Party has been saying, the vaccine is made in India, don't believe in it. लेकिन मैं धन्यवादी हूँ आप जैसे युवाओं का जो समझदार थे, वैक्सीन लगाई भी, 2 ने नहीं 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में किसी देश में लगी, तो उस देश का नाम भारत है और भारत के साइंटिस्ट ने ही उसका निर्माण किया। 1 नहीं 2 वैक्सीन बनाई।
When I talk about startups, I still remember in 2019 when I became the Minister of State for Finance, Prime Minister called me and Nirmala ji and said, listen, you have to solve the issues of startups. They have certain issues with the factory inspection to the taxation and so the other issues. You need to sort it out at the earliest. Our youth can do wonders. And he used to take meeting every month on what steps has been taken. Today I can proudly say the Indian youth has delivered from nowhere in 2014 to bring India among the top 3 startup ecosystems in the world. With 1 lakh startups in the country. और केवल हम 1 लाख स्टार्टअप्स पे नहीं रुके. आज भारत में 107 यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि एक यूनिकॉर्न का मतलब है $1 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन. 8,500 करोड़ की एक कंपनी होगी तो कई हज़ार लोगों को रोजगार भी दिया होगा. ये किसी और ने नहीं किया, ये भारत के युवाओं ने करके दिखाया है. इसीलिए कहा है यही समय है. Now if I have to move forward, the key points, Fragile 5, I have already said, I have already mentioned about it. Transition begins and course correction, it was started in 2014. And Prime Minister Modi in the initial years very rightly said, reform, perform and transformed. In the last 9 years, we have seen how he has taken the big steps towards reforms. Even during the COVID-19 pandemics, when he called a meeting of smaller group of ministers, 3-4 of us, and he started discussing with us that how we can open a few more sectors from coal and mining to defense production, to the space sector and the agriculture and many other such sectors. And some of us has apprehension whether is this the right time during the COVID-19 pandemic to open the sectors, to bring in reforms? But he was very, clear about it, that we should do it. And look the change within couple of years. डिफेंस प्रोडक्शन को खोला गया, 1000 आइटम्स के लगभग को बैन किया गया. आज भारत की 2 साल के अंदर प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपया है डिफेंस प्रोडक्शन, और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है. भारत सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश था. आज भारत उस दिशा में बढ़ रहा है कि भविष्य में दुनिया के टॉप 3 डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में से एक भारत होगा. ये हमारी ताकत है. आत्मनिर्भर भारत, उसको बल देने का काम जो मात्र 3-4 वर्षों में एक बदलाव देखने को मिला. दूसरा, ये जो आपके हाथ में फ़ोन है जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, ये कभी ने बंद नहीं करना. मैं बता रहा हूँ, कईयों ने फ़ोन ही नीचे कर दिया. ये आज से 6 साल पहले ये कहाँ से आता था? चाइना, वियतनाम, ताइवान, उससे पहले आता था स्वीडन से लेके अन्य देशों से. हम एक पॉलिसी लेकर आए कि मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे. फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड द मोबाइल, इन जस्ट 6 years span, इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मोबाइल फोन. एप्पल जैसे फ़ोन जो आईफोन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अब इंडिया में होती है. तो सब संभव है. आत्मनिर्भर होने की शुरुआत कहाँ से हुई? कोविड-19 पेंडेमिक में मास्क नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं था. हमने अपने देश की पूर्ति भी की और दुनिया भर की पूर्ति करने का कार्य भी किया. सो वहाँ से करते करते, कोर्स करेक्शन करते करते हम कहाँ पहुँचे? वी आर अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड एज द IMF लीडर हैज सेड, इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. ये बहुत बड़ी बात है. पूरी दुनिया का मानना कि एक चमकते हुए सितारे के रूप में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में नजर आता है, जबकि दुनिया भर में मंदी होने के आसार हैं, भारत चमकते हुए सितारे की तरह आगे बढ़ रहा है. ये पूरा चार्ट आप इसमें जा सकते हैं कि पहले क्या कारण थे, अब क्या है. अगर आप इसमें देखेंगे चार्ट में, तो रीजंस पहले वाले क्या थे? पूर्व की सरकारों में स्कैम थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था. गठबंधन की सरकार थी, वहां ए राजा खींचते थे तो 2G स्कैम हो जाता था, कोई दूसरा खींचता था तो यूरिया का स्कैम होता था, कोई तीसरा खींचता था तो पनडुब्बी का स्कैम होता था.
एक और आया तो देवास का स्कैम, अंतरिक्ष का स्कैम हो गया। कोई जगह नहीं छोड़ी, अंतरिक्ष से लेके पाताल तक, कोयले से लेके अन्य तक स्कैम ही स्कैम हुए। लेकिन 2014 में 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और तब से लेकर अब तक एक भी स्कैम देश की सरकार में नहीं देखने को मिला। ये बड़ा बदलाव है, बड़ा अंतर है। फिर उस समय क्या था, अगर आप 2013-14 के, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू यूज इंटरनेट, यू कैन डू इट, यू कैन सर्च ऑनलाइन। In 2013-14, there was no COVID-like situation, there was no recession in the world. Even then, the inflation in the country was up to 13%, 13% महंगाई दर थी। आज 4.5-5% है। एवरेज अगर मोदी सरकार के 9 साल का देखोगे 4.5% से ऊपर नहीं जाता है। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब आप बाकी हिस्सों पे भी देखेंगे, रेटिंग्स पूर्व की सरकारों में डिग्रेड हो रही थी, एफडीआई वापस आ रही थी, कम हो रही थी, और हमारा फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी और फिस्कल डेफिसिट दोनों में ही बढ़ोतरी थी। अब इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज तक का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास हैं। आज तक की सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2021-22 में आई, लगभग $83 बिलियन होगी, अगली किसी स्लाइड में होगी। $83 बिलियन। जब दुनिया संकट में थी तो भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही थी। ये विश्वास किसी भी देश के नेतृत्व पर है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, कैसे इंडिया 2002 से लेकर अब 2023 तक कैसे पहुंचेगा। आप देखिए इकोनॉमी कहाँ थी, हम लोग कैसे कैसे ऊपर आए। हम 10वें नंबर पे थे, देखिए इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है और ये इंडिया 5वें नंबर पर पहुंच गया। और अब देखिए आप, इंडिया 2027 में तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। और हमने किया कैसे? मैं पहले पॉइंट से शुरू करता हूं, अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। लास्ट माइल डिलीवरी की और वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं, 2 कारण हैं। एक, आपकी आमदन बढ़े तब आप गरीब कल्याण की योजनाएं ज़्यादा चला सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप साथ साथ में अपना डिलीवरी मैकेनिज्म को बेहतर करोगे, ट्रांसपेरेंसी लाओगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे, तो जो बीच में से खाने वाला सिस्टम है वो बाहर निकल जाएगा और आपका जो एक्चुअल एंड यूज़र या जिसको मदद मिलनी चाहिए उस तक वो मिल पाएगी। मोदी सरकार ने दोनों काम किए, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की और साथ ही साथ जो फेक ऐसे हमारे अकाउंट्स थे उन सबको बाहर निकाला। ऐसे करोड़ों अकाउंट्स जहां पर दिखाया जाता था कि बेटी पैदा हुई, उसके नाम पे पैसा लेते थे, उसके नाम पे पैसा जमा होता था। उसकी मां को गर्भवती दिखाया जाता था, उसके नाम पे पैसा मिलता था। वो बेटी की स्कूल की शिक्षा में कुछ सालों में उसको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता था। आने वाले वर्षों में उसकी शादी भी दिखाते थे, विधवा भी दिखा देते थे जो कभी पैदा ही नहीं होती थी। ये कागजों में कार्रवाई थी। बट जनधन, आधार, मोबाइल, ये त्रिशक्ति के कारण जनधन खाते खोले, आधार कार्ड बनाया और मोबाइल के उपयोग से अगर आपको डीबीटीज, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर करना शुरू किया तो अब खाने वाले बाहर निकल गए और सीधा खाते में पैसा आता है और देश का पैसा भी बचता है, गरीब के हित में योजनाएं भी सफल होती हैं। उसका एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक क्रेडिट, जब खाते खोलेंगे तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि गरीब का खाता क्यों खुलेगा। कब लगा था ये? 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए, बैंक खाता। आप में से कभी कोई अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया है स्वयं? कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अब मैं तो देखिए मेरी उम्र ज़्यादा होगी, जब हमारे ज़माने में खोलते थे तब 2 लोग साथ में लेके जाने पड़ते थे विटनेस के रूप में, और वो विटनेस के रूप में भी पता नहीं फिर खाता खुले ना खुले, मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता था। उसके कारण ही गरीब का खाता नहीं खुलता था। मोदी जी ने बैंक वालों को कहा वो नहीं आपके पास आएंगे, अब बैंक वाला गरीब के घर जाके बैंक खाता खोलेगा। 45 करोड़ बैंक खाते, 450 मिलियन बैंक अकाउंट्स वर ओपन इन जस्ट 2 years स्पैन। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, हमने किया।
आज जो कहते थे कि गरीब के खाते में 1 रुपया जमा नहीं होगा, फॉर योर नॉलेज आई वुड लाइक टू से those 450 million accounts have more than 2 lakh crore rupees deposited today. जो गरीब कभी इस सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं था, उसमें आया। दूसरा उसका लाभ उसको क्या मिला, उसको क्रेडिट मिलना शुरू हुआ। बाहर उसको 36% साल के ब्याज पे पैसा मिलता था, अब 10% पे मिलता है। गरीब की बचत भी हुई। मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो शायद ज़्यादा समय लग जाएगा। किसान को बीज तक आने का, बीज मिलने का, बीज से लेकर बाजार तक अपनी पैदावार लाने के लिए ई नैम फैसिलिटी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, उसका भी हुआ। पॉवर्टी एलिवेशन की बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इनकम लेवल्स में बहुत सुधार हुआ और इससे आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 25% से कम होकर 15% रह गई। अगर आप इस स्लाइड पे देखेंगे सेकंड ऑर्डर में और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट, आप शुरू में देखिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देश में गरीबों को लकड़ी लेने नहीं जाना पड़ता, उनको रसोई गैस का सिलेंडर मिला है 9.5 करोड़। उसका इम्पैक्ट ये आया है कि महिलाओं का समय भी बचा और सेहत में भी सुधार हुआ, धुएं से मुक्ति मिली। दूसरा, आवास योजना, 1.5 करोड़ पक्के मकान ही बन पाए थे इतने वर्षों में, मोदी जी ने 9 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान बना दिए और महिलाओं के नाम पे बैंक ये मकान दिए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, डिग्निटी के साथ रहने का अवसर मिला, शौचालय बनाए गए 12 करोड़ के लगभग, तो महिलाओं ने इज्जत घर लिखा। आप अच्छे परिवारों से आते हैं, आपके घरों में शुरू से टॉयलेट था, आपने शायद नहीं देखा होगा। मैंने देश के लगभग 500 जिलों में ट्रैवल किया है। सुबह की ट्रेन मुझे लेने की आदत थी, सुबह का प्लेन या सुबह बाय रोड निकलो तो आप देखोगे सुबह शाम पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे लोग खुले में शौच करने बैठते थे। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, गंदगी भी फैलती थी और उनके साथ अत्याचार के बड़ा कारण एक वो भी समय रहता था। इन सब से मुक्ति दिलाई तो महिलाओं ने, मोदी जी ने नहीं दिया, महिलाओं ने उस टॉयलेट के बाहर लिखा इज्जत घर, डिग्निटी के साथ रहने का एक अवसर दिया, वो भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद। कहनी छोटी बात लगती है शौचालय, लेकिन वो भी मिला तो 75 सालों के बाद, तो इसी सरकार के समय मिला। जल जीवन मिशन, अब शहरों में भी कई जगह पानी नहीं आता, दिल्ली जैसे शहर में भी, देश की राजधानी में भी टैंकर से पानी मिलता है कई जगह पे। मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूँ, पानी बरसता बहुत है लेकिन बहकर चला जाता है। अब 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य पूरा कर लिया, अगले 2 साल में हर घर को नल से जल पूर्ण कर लिया जाएगा। तो महिला के जीवन में बदलाव देखिए, लकड़ी लेने नहीं जाना पड़ेगा, खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ेगा, पानी लेने के लिए समय बर्बाद नहीं होगा। ये 3-4 घंटे अगर एक दिन में बचते हैं तो महिला के जीवन में कितना बड़ा सुधार है। ये हम क्लासरूम में बैठकर शायद अनुभव ना कर पाएँ, लेकिन जिनके जीवन में उसको फर्क पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर 1 हफ्ते के लिए हम मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हम सोच रहे हैं जागरण यहाँ यूनिवर्सिटी में बंद कर दिया जाए, अरे मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे सोच रहे हैं कोई पड़ेगा फ़र्क? अब जब तक डिसरप्शन नहीं होती तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हुआ क्या है। दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा आपके पास है, सबसे ज़्यादा डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो। अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उस दिशा में बढ़ रहा है। इसी तरह से ही जब तक ये ना लगे कि इस पूरे कैंपस के टॉयलेट बंद हो गए, तब आपको पता चलेगा उनके साथ बीतता क्या था। वो एक महिला के बारे में सोचिए, उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। इसका थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट की बात मैंने इसलिए की, कई बार हम बाहर से देखने से अनुभव नहीं होता, लेकिन जो नीचे काम करते हैं उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम इस पे जाएं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें मुद्रा लोन लेने के लिए आपको अपना घर, जमीन, सब कुछ गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन अब आपको वो नहीं रखना पड़ता। मोदी जी ने ये कर दिया है कि आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको बगैर गारंटी के पैसा मिलेगा, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और 43 करोड़ लोन मिले हैं अब तक, जिसकी कुल वैल्यू जो है कि कितना अमाउंट लोन मिला, वो 25 लाख करोड़ रुपया अब तक सैंक्शन किया है देश के गरीब जनता को, जरूरतमंद को, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसके लिए भी मोदी जी ने ऋण दिलाया। तो
तो इसका मतलब कितने करोड़ लोग अपने पांव पे खड़े होंगे, रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार के उनको अवसर मिले होंगे। इसी तरह से स्वनिधि योजना है, ये स्ट्रीट वेंडर के लिए बनी थी कोविड के टाइम पे। 5,000 रुपये उनको, 5,000 से लेकर 10,000 रुपये इनको दिया गया। अब डिजिटली इनको पेमेंट वापस करनी है और वापस करते हैं तो इनको उस पर इंसेंटिव भी मिलता है, इनका इंटरेस्ट माफ़ हो जाता है, फिर 20,000 तक क्वालिफाई करते हैं, फिर 50,000 तक। अब इनका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, आगे कर रहे हैं। जीएसटी पे मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वन नेशन वन टैक्स, आपने वन नेशन वन इलेक्शन तो आजकल सुन रहे होंगे, लेकिन वन नेशन वन टैक्स ये 2017 में हुआ। बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने मना किया कि नहीं करना चाहिए। जब इसको लागू किया तो फर्क क्या पड़ा? आज से 2.5 साल पहले तक टैक्स कलेक्शन थी 90,000 करोड़ रुपया एक महीने की, अब बढ़कर हो गई है 1,60,000 करोड़ रुपया एक महीने की, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। यानी कि बेहतर टैक्स कलेक्शन हुई तो इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सुविधाओं पे भी और फायदा मिल पा रहा है। फॉर्मल इकोनॉमी की या एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 93% था और ऑर्गेनाइज सेक्टर में 7% था। अब इसको फॉर्मल करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है, तो उसमें आप देखेंगे 6.43 करोड़ ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन हुई, इतने नए रोजगार भी हुए हैं। और डिजिटलाइजेशन में 99% इंडियन के पास अब आधार भी है। गवर्नमेंट का जेम पोर्टल पे आप सामान भी खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो, और डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफ़र डीबीटी का भी आप लाभ उठा पा रहे हो। अगर आप टोल टैक्स नाके से निकलते हो तो आपने देखा होगा पहले जितना समय लगता था, अगर फास्टैग हो तो उतने में आप कम सेकंड्स में ही आप निकल जाते हो। ये डिजिटल इंडिया पे मैं थोड़ा समय जरूर लगाऊंगा क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया उस समय जब डिजिटल इंडिया की बात की तो पी चिदम्बरम जी ने राज्यसभा में एक भाषण दिया, उसमें कहा मोदी जी थोड़ा हिल गए हैं, कहते हैं डिजिटल इंडिया का किसको फायदा मिलेगा? गरीब के पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना इंटरनेट कनेक्शन है, वो कैसे पेमेंट करेगा डिजिटल पेमेंट? अगर आपको 8.5 रुपये की पेमेंट करनी होगी तो आप मोबाइल फ़ोन से कैसे करोगे? अभी उन्होंने कई प्रश्न खड़े किए थे, उस समय वाजिब लगते थे कई लोगों को, लेकिन आज अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए, आज अगर चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, रेडी वाला हो, ठेले वाला हो, ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, क्या डिजिटल पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते? हाँ या ना? करते हैं। आप में से कौन कौन डिजिटल पेमेंट करता है? अरे सभी करते हैं, वेरी गुड। तो इसका मतलब चिदम्बरम जी गलत थे और मोदी जी ठीक थे। एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इससे। और इसी तरह से मुझे सुंदर पिचाई एक दिन मिले पिछले साल, नहीं इसी साल जनवरी में, तो मुझे कहने लगे कि देखो मैं तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ हूं, उसके बावजूद मैं आज तक डिजिटल के बजाय फिजिकल कॉपी अपने कोविड सर्टिफिकेट की लेके जाता हूं। अमेरिका में रहता हूं, लेकिन मेरे भारत में, जहां दुनिया के लोग कभी इसको कहते थे सपेरों का देश है, भिखारियों का देश है, आज उस देश में इतना बड़ा बदलाव है कि जो 110 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, आज उनके पास डिजिटल कॉपी है कोविन पर। ये किसी और ने नहीं, ये मोदी सरकार में संभव हो पाया है। आप किसी दुनिया के देश में जाएंगे, अपने फ़ोन पर ही अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो। ये बड़ा बदलाव है। दूसरा देखिए, 734 सेकंड से मात्र 47 सेकंड आपका टाइम रह गया है फास्टैग का। इसी तरह से लैंड पार्सल स्वामित्व योजना के अंतर्गत आपको अब अपने ज़मीन की रजिस्ट्री टेक्नोलॉजी से मिल जाएगी, ताकि आपके पास अपना लैंड रिकॉर्ड हो। 114 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन देश भर में हो गए, ये सबसे बड़े अगर देखा जाए तो दुनिया भर में एक तरह से है। रुपए डेबिट कार्ड अब एक नहीं 26 देशों में मिलता है। ये भारत की करेंसी और भारत का रुपए डेबिट कार्ड अब कितने देशों में मिल रहा है। इसी तरह से ही हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अब फिजिकली जाने की बजाय आप लोग ऑनलाइन अपना एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं? अभी एक सर्वेक्षण हुआ, अभी जब ये G20 की बैठक हुई तो उसमें कुछ ऐसे स्टैंड्स लगे थे जहां पर, अरे मोहन जी, उसमें
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जहां आर्टिजन्स के काम को दिखाया गया, वहीं पे दूसरी ओर डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया ने क्या किया वो दिखाया गया, और हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में वो इमर्सिव टेक्नोलॉजी की ओर उनको वो प्रेजेंटेशन थी। दुनिया देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि भारत, एक और मोदी जी भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर खड़े थे वहां पर पीछे जो बड़ा सा एक चक्र नजर आ रहा था वो कोणार्क टेम्पल का व्हील नजर आ रहा था। और यही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकड्रॉप के डिनर के टाइम पे मोदी जी ने उनको रिसीव किया, तो हमारे यहाँ पे हजारों साल पहले विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी थी। तो दूसरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यू इंडिया की पहचान बता रहे थे कि भारत कहाँ पर है। ये देखिए मोदी जी कहाँ से कहाँ तक देश को दिखाने का काम करते हैं। मैं आप सब युवाओं के बीच में इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि आप जब इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर जाएंगे, जिसको डायमंड से लेके टॉप यूनिवर्सिटीज़ तक रैंकिंग की गई है यहाँ पर, तो आपके कंधों पर बहुत बड़ा भार होगा। आपको केवल अपना करियर नहीं बनाना है, अपने देश के प्रति आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो उसमें आप कहाँ कहाँ कर सकते हो यहाँ पे देखना है। इसमें उमंग ऐप से लेके बाकी सब डेटा है, क्या क्या किया है। डिजिटल रेवोल्यूशन के कुछ हैं, यूपीआई भीम दुनिया का सबसे सफल और सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट्स, 46%। डिजिटल एंटरटेनमेंट, ओटीटी, आप तो ओटीटी पे कुछ नहीं देखते होंगे कि देखते हैं? ग्रोथ पता है कितनी है? 28% ग्रोथ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा। कोविन ऐप से लेकर डिजिटल एजुकेशन, आपके यहाँ स्मार्ट क्लासरूम तो नहीं होंगे यहाँ पे? है। मैं सिर्फ इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं ही कहीं डिजिटल बात तो नहीं कर रहा, कहीं नीचे भी है कि नहीं है। तो यहीं पर हमारी गिग इकोनॉमी से लेकर अगर आप देखेंगे पर व्यक्ति जो डेटा कॉस्ट है वो बहुत कम हुई है। ये हमारी जो आईएमएफ की एमडी हैं, उन्होंने कहा कि भारत ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसका कारण क्या है? भारत ने जो स्ट्रीमलाइन किया है बिजनेस अप्रूवल्स को, जो पुराने लॉज थे उनको कैसे ख़त्म किया, उसके ऊपर आपको ये एक स्लाइड से पता चलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देश में 63,000 कंप्लाइंसेस थी, 63,000 के लगभग कंप्लाइंस बर्डन था। उसमें से 39,000 को कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब 24,000 है अलग अलग कामों को करने के लिए। हम इसको और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चांसलर साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी आपके विद्यार्थी इस पे थोड़ा होमवर्क और करेंगे, इंडस्ट्री वालों से इंटरेक्शन करेंगे, और कौन कौन से कंप्लाइंसेस को कम किया जा सकता है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट दैट रिपोर्ट एंड विल ट्राई टू एंश्योर कि वो कंप्लायंस बर्डन भी हम और भविष्य में कम कर दें, और वो आपके खाते में, आपकी स्टूडेंट्स के खाते में वो जा सकता है। इसी तरह से ही ये जो अगर आप बाकी देखेंगे, इन सारे में हमने लगभग 1500 से ज़्यादा पुराने कानूनों को ख़त्म कर दिया है। लीगल प्रोविजंस, जो बहुत सारे कानून ऐसे थे, आपको शायद पता नहीं, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई फैक्ट्री चलाता होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, तो कभी पूछिए अगर इतनी लेबर हो तो इतने टॉयलेट होने चाहिए, उसके लिए कैंटीन होनी चाहिए, कैंटीन में सुविधा होनी चाहिए, फैक्ट्री का पेंट ऐसा होना चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा होना चाहिए, लेबर के लिए रजिस्टर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों का उल्लंघन करने पे भी आपको जेल हो सकती थी, क्योंकि वो क्रिमिनल उसका एक पार्ट था उसके पूरे एक्ट में। अब उसको डीक्रिमिनलाइज करने में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, ताकि जेल जाने का संकट ना हो। इससे भी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लाभ मिला और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिला है। अगर आप देखेंगे अमृत जनरेशन में, मैंने पहले बताया, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर अब 100 से ज़्यादा हमारे यूनिकॉर्न्स हैं और 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं। गति शक्ति की बात मैं इसलिए मित्रों करना चाहता हूं कि हमने एक्सपेंडिचर 5 गुना ज़्यादा बढ़ाकर इस बार 10 लाख करोड़ रुपया इसी 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। ये जो देश भर में नेशनल हाईवे से लेके एक्सप्रेस वे से लेके आप बाकी बनता देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी सरकार इस पे पैसा खर्च कर रही है। और अगर आप इसमें देखेंगे, मेजर पोर्ट्स में हम 725 मिलियन टन कैपेसिटी को ऐड करने जा रहे हैं। हाईवेज में हमने इतनी कंस्ट्रक्शन की है कि पूर्व की सरकारों से लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा हमने रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन हमने 23,000 किलोमीटर बिछा दी है और
12,500 किलोमीटर रोड हमने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पूरे कर लिए। एयरपोर्ट आज़ादी से लेकर 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, हमने 9 साल में 75 न्यू एयरपोर्ट बना दिए। 7 IIT और 7 IIM 2014 तक थे, हमने पिछले 9 सालों में 9 नए IIT और 7 नए IIM बना दिए। 2014 तक 620 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 9 सालों में 700 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए। 7 एम्स थे 2014 तक, हमने पिछले 9 सालों में 15 नए एम्स बना दिए। आधा किलोमीटर मेट्रो बनती थी 2014 तक, हम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा बनाते हैं। इंडिया इज़ अमंग द 4th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम्स इन द वर्ल्ड नाउ, और हम जल्द ही सेकंड तक पहुंच जाएंगे अगले कुछ सालों में। ये एक नहीं अनेक योजनाएं। गति शक्ति से हुआ क्या है, हमने सबको टेक्नोलॉजी से ले आए हैं। मान लो अगर अभी कोई नया प्रोजेक्ट बनना है, उसके अंदर 1600 लेयर्स हैं। पाइपलाइन कहाँ से जा रही, बिजली की तारें कहाँ जा रही, यूनिवर्सिटी है क्या, कोई ग्रीन प्रोजेक्ट यहाँ पे तो नहीं है, कोई वाइल्ड लाइफ तो नहीं है, वो सारा सिस्टम पे दिखता है। पहले प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था, फिर मुकदमे होते थे, अब वो सारा खत्म कर दिया है और गति शक्ति के कारण सही मायने में गति भी मिली है। इस पे दाहिने और पे एक ट्रेन देख पा रहे हैं, ये कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत में किसी ने सफर किया है? ये देश की सबसे आरामदायक और सबसे आधुनिक ट्रेन है, और हमें खुशी इस बात की है, ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी पहचान वंदे भारत भारत ने की है। ये लगातार हम ऐसी ट्रेन्स, अब देश में लगभग 31 वंदे भारत ट्रेन हो गई, और मार्च 2024 तक हम 75 वंदे भारत ट्रेन्स को पूरा कर देंगे। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देखिए, 24 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगेंगे दिल्ली से मुंबई जाने में। यू कैन डू मोर रोड ट्रिप्स। यही नहीं, ये जो आप कारगिल जंस्कार देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ किलोमीटर चढ़ने के लिए भी 8-8 घंटे लगते थे। यहाँ पे टनल बना दिए 14,000 फीट की हाइट पे, और दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल अटल टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली में रोहतांग पे बनी, रोहतांग टनल जो अटल टनल है। ये भारत में आज क्या क्या हो रहा है। अगर आप चिनाब नदी पे एक पुल देखेंगे रेलवे का, तो इतना सुंदर और इतना आधुनिक है, बिल्कुल आत्मनिर्भर है। वो आईफिल टावर से भी 100 मीटर बड़ा है, ऊंचा है। आज हम कह सकते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे लंबे, सबसे बड़े। इस तरह की बात करने का आज इंडिया में बात होती है कि सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की कहां पर है? कहां पे? गुजरात में केवड़िया गांव में सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पर जम्मू में है। सबसे लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह से सबसे लंबे रोड नेटवर्क से लेके अब आप कहीं पे बात करिए, भारत का नाम उन चीजों में आ रहा है जहां पे पहले कहीं नहीं आता था। 4 आवर स्ट्रेटेजी पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये हमने उस समय लिया था जब बैंकिंग सेक्टर बहुत खराब हालत में 2013-14 में था। मोदी जी ने आते ही ये शुरुआत की, और इसके बाद जो बैड लोन्स थे उनको बाहर निकाला, और ये सारे रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन एंड रिकवरी, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स, इसको लागू किया। और इससे फ़र्क क्या पड़ा? पंजाब नेशनल बैंक जो एक बार बंद होने की कगार पे आ गया था, अब उसका 1 क्वार्टर का प्रॉफिट भी कई हज़ार करोड़ रुपए में आ रहा है। ये कैसे हुआ? 12 में से 10 पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत आ गए थे। ये हमने 4R रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क वगैरह लेकर आए, तो इसके कारण मात्र 3 सालों के अंदर टर्न अराउंड बैंकों का हो गया। अब 12 के 12 बैंक प्रॉफिट में हैं और डिविडेंड दे रहे हैं। एक अच्छी और सच्ची सरकार की निशानी है। ये भारत सरकार ने बैंकिंग में जो किया, जो देश के लोगों को लाभ मिल रहा है। अब एसबीआई का एनुअल प्रॉफिट देखिए, आप देख सकते हैं 11,000 करोड़ था, बढ़ के 50,000 करोड़ हो गया पिछले साल। 10 लाख करोड़ के एनपीए थे, जिसमें से बाहर निकाल के हम ले आए। अब एचडीएफसी दुनिया का 4था सबसे बड़ा बैंक बन गया है, और पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट पिछले साल 1 लाख करोड़ पे आया है। ये बड़ा बदलाव है। मेक इन इंडिया में इंडिया ने बहुत बड़ी तरक्की की है। इसके बड़े कारण क्या है? डीक्रिमिनलाइजेशन करना, ताकि तलवार लटकी रहती थी जेल की, वो हटा दी। कॉर्पोरेट टैक्स, नई कंपनी बनाओगे तो हमने 2020 में निर्णय लिया था
कि 15% केवल उसको टैक्स देना पड़ेगा। दुनिया के सबसे कम टैक्सेस में से एक है। उसके कारण हुआ कोविड के टाइम पे हमने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया। उसके कारण इंडस्ट्री में बूम आया। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी, जो लार्ज इकोनॉमीज हैं उसमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी कोई और नहीं, हमारा भारत है। सबसे तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है, 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि खादी को, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को बढ़ावा दें, लोकल प्रोडक्ट्स को, आत्मनिर्भर भारत को, भारत के लोगों का पसीना जहां पे बहा है आप उन प्रोडक्ट को खरीदिए। तो उसका लाभ क्या मिला? पिछले कुछ वर्षों में 300% वृद्धि हुई है। मुझे याद नहीं, लेकिन अंदाजन 1,20,000 करोड़ का टर्नओवर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का हो गया, जो मात्र 10-11 हज़ार करोड़ था। ये बड़ा बदलाव है। तो इसमें गांव में बैठे व्यक्ति को कैसे फायदा मिल रहा है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हम 14 सेक्टर में लाए। इससे टर्नओवर कहाँ 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की इंक्रीमेंटल सेल्स हुई हैं और एक्सपोर्ट हमारा $447 बिलियन हो गया है। अगर अब तक की अचीवमेंट देखी जाए तो हमारा एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन 30% हो गई। बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियां आज भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 23 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। 98% हमारे मोबाइल फ़ोन की शिपमेंट इंडिया में अब यहीं पे बन रही है और एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत हो रहा है। भारत से एक्सपोर्ट का जो ट्रैक्टर्स का एक्सपोर्ट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पर 1,84,00,000 का हुआ है। इसी तरह से ही एफडीआई $83.57 बिलियन हमारा कोविड के समय 2021-22 में आया। और इंडिया ऑटोमोबाइल की जब बात करते हैं तो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। और अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर आज भारत बनकर उभरा है। ये एक के बाद दूसरा उदाहरण है कि भारत के बढ़ते कदम। मैरीन एक्सपोर्ट्स हम मात्र $5 बिलियन पे थे, अब उसमें $8.9 बिलियन, 47% ग्रोथ है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 291% ग्रोथ, यानी कि 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। कहाँ 6 बिलियन और कहाँ पे $23 बिलियन। वहीं पे टॉय एक्सपोर्ट, खिलौने भी हम बाहर से लाते थे, अब हम लाते नहीं, बाहर भेजने का काम करते हैं। वहाँ पे भी 2.5 गुना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। अब ऑनेस्टी इन गवर्नेंस से क्या फ़र्क पड़ता है? जो मैंने जैम ट्रिनिटी के बारे में आपको पहले ही बताया, उससे सरकारी खरीद में क्या होता था, बाबू जहाँ दिल किया वहाँ से खरीदा। अब हमने सर क्या कर दिया है, इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी भी सरकारी विभाग को जाना है वो ऑनलाइन जाएगा। आप में से कोई भी यंगस्टर जो 18 साल से ज़्यादा, आप अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाओ या पार्टनरशिप फर्म बनाओ, एलएलपी बनाओ, आप भी सामान लेके ट्रेडिंग करके वहाँ पे बेच सकते हो। कोई छोटे से छोटा कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी काम कर सकता है। हमने उसके माध्यम से अब सरकारी खरीद भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपया पिछले साल हुई और 31 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इससे हमारा करप्शन भी बचा है, खरीद भी सस्ती हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में बैठे लोगों को लाभ भी मिला है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में भी हमारे युवाओं के मुकाबले, यानी कि लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ की संख्या भी उतनी ही नज़र आ रही है। जहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में अगर देखें, जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में मैं जाता हूँ, अगर 100 लोगों को वहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है तो 100 में से 70 से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं। इसका मतलब लड़कों को पीछे छोड़ के शिक्षा में लड़कियाँ ज़्यादा आगे निकल गई हैं। और अगर खेलों में भी देखूं तो हमारे बहुत पीछे पहले महिलाएं होती थी, लेकिन आज नई ऊंचाइयों पर जहां महिला वहां पर पहुंची, वहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा महिला पायलट भी किसी देश में है तो भारत में है। फौज में भी, चाहे हमारे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, वहाँ पे भी महिला अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कुछ और करने वाला हूँ। पार्लियामेंट से लेके असेंबली तक महिलाओं की तादाद कैसे बढ़े, वो एमएलए से लेके एमपी कैसे बने, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना तो लाए, लेकिन अब वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन लेड एम्पावरमेंट की ओर कैसे बढ़ना है। वो नारी शक्ति वंदन बिल के पास होने से
अब पार्लियामेंट और असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए इंश्योर कर दी है। भविष्य में आप में से बहुत सारों को मैं, हो सकता है कईयों को विधानसभा में तो कईयों को संसद में अपने साथ देखूंगा। आशा करता हूं आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे और समाज में परिवर्तन लाएंगे। ये शुरुआत हुई 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। भारत में औसतन 870 लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले। आज 1020 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले। तो बेटी बची भी और बेटी आगे भी बढ़ी। कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में भी अंकुश लगा और बेटी को पढ़ाने के लिए जहां शिक्षा उपलब्ध कराई गई, वहीं पे स्कूलों में शौचालयों के निर्माण किए। नहीं तो 5वीं कक्षा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियां स्कूलों में नजर नहीं आती थी, वहां पे बदलाव देखने को मिला। महिला घर में ही डिलीवरी करती थी, गर्भवती महिलाएं। अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बल दिया गया। उनका एम्बुलेंस का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा और उनको न्यूट्रिशन फूड से लेके जेब खर्च तक देने का काम भी भारत सरकार करती है, जिससे बच्चों की मृत्यु भी कम हुई और महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसी तरह से ही बहुत सारी और योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को फ़ायदा मिला। ये सारी योजनाओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन खेलों का मैं यहाँ पर थोड़ा सा बल जरूर देना चाहूँगा, वो आगे दे देता हूँ। ये नारी शक्ति ने कैसे आगे बढ़े उसका सारा यहाँ पर आंकड़ा है। मुद्रा लोन भी सबसे ज़्यादा मिले तो महिलाओं को 28 करोड़ मिले हैं। मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों की थी, अब 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव कर दी है। और प्रधानमंत्री आवास भी 2.5 करोड़ महिलाओं को मिला है। तो वहीं पर 311 ITIs खोले गए हैं केवल महिलाओं के लिए। इसी तरह से ही उज्ज्वला योजना का लाभ भी महिलाओं को मिला और 10,400 से ज़्यादा डिफेंस में आज महिलाओं की भर्ती हो पाई है। ये भी पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के समय हुआ। ये खेलो इंडिया में आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि कैसे प्रवीण हुड्डा से लेकर निखत जरीन तक, ये सबकी फ़ोटो आपको इसमें नज़र आ रही है। बॉक्सर्स हैं हमारी, इनमें से 4 वर्ल्ड चैंपियन हैं आज। खेलो इंडिया कैसे, 2014 में तो हम रियो ओलंपिक्स में मात्र 2 मेडल ला पाए थे, लेकिन मोदी जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की। बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एथलीट इज नॉट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी। सारा खर्चा भारत सरकार का है और साथ ही साथ जेब खर्च, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस 6 लाख रुपया ये भारत सरकार देती है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे सैकड़ों एथलीट टॉप स्कीम के अंतर्गत खेल भी रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। और जो खेलो इंडिया अभियान है, इसको पहले 4 साल के लिए 3,000 करोड़ मिला था, बहुत सफल रहा। अब अगले 5 साल के लिए 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है। और खेलो इंडिया के यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश ने बहुत सफल तरीके से पिछले साल किया और यहाँ पर 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 21 महिला एथलीट ने तोड़ने का काम किया। हमारे देश में ये आंकड़े आपके सामने कि खेलो इंडिया से कितना फायदा मिला है। 2014 में 600 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीए के सरकार में कांग्रेस के समय बन रहा था, आज 3000 करोड़ का बन रहा है। हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर देंगे, 10 साल में नहीं, इसी 1 साल में 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर देश के हर जिला को दे देंगे। इससे खेलों को बढ़ावा भी मिलेगा। 1000 कोचेस की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, लगभग 450 की कर दी है। युवा साथियों, खेलों में भारत का नाम लगातार आगे बढ़ रहा है। कहाँ 2 मेडल थे, अब हम वहाँ से बढ़ के 2 से 7 मेडल हमने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते, 19 मेडल पैरालंपिक में जीते, 20 मेडल डेफ ओलंपिक्स में जीते, 61 मेडल हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते, 22 गोल्ड मेडल थे। थॉमस कप हम कभी नहीं जीते थे बैडमिंटन का, हमने वो भी गोल्ड मेडल जीता। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल में हम लोग 18 मेडल जीते थे। इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने एक ही साल में 26 मेडल जीते, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। और अभी जो एशियन गेम्स हो रही हैं, वहां अब तक हमारे 91 मेडल हो गए हैं और 100 का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं। युवा साथियों, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके सामने जो हमारे खिलाड़ियों के हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आप यहाँ पे देखिए, सशक्त भारत की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉर्डर सिक्योर्ड हों
और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ साथ लगते इलाकों में नक्सलवादी जिले भी बहुत सारे थे। बाहरी और आंतरिक दोनों सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने दोनों तरफ काम किया। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ने हथियार डाल दिए हैं जिससे वहां पर पीस हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई चली और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा संकट होता था आर्टिकल 370-35A स्पेशल स्टेटस के कारण, उससे भी जो 70 साल से पीड़ा थी उससे भी सदा सदा के लिए मुक्ति मोदी सरकार ने दिला दी है। आर्टिकल 370-35A अबॉलिश कर दिया है। हमारे बॉर्डर को और सिक्योर करने के लिए वहाँ पर हज़ारों किलोमीटर की सड़कें बनाई गई, नए एयरपोर्ट बनाए गए, रेलवे लाइन तक वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। 44% इंसिडेंट यानी कि आतंकी घटनाओं की रिडक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर में। पथराव की घटनाएं तो बिल्कुल बंद हो गई। 77% रिडक्शन हुई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में और 76% रिडक्शन हुई है नॉर्थ ईस्ट में। आप कल्पना कीजिए कितना खून बहता था, उसमें कितना बदलाव आया है। और ये देखिए रीडिफाइनिंग वर्ल्ड ऑर्डर। बताइए कहाँ की फोटो है? यूक्रेन में क्या चला था? वॉर चली थी। हमारी ओर से क्या चला था? ऑपरेशन गंगा। हाथ में तिरंगा और ऑपरेशन गंगा। और युद्ध की भूमि से तिरंगे की ताकत को देखिए कि कभी तिरंगा जम्मू कश्मीर में फहराने पर भी मेरे जैसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया था। जब मैं सांसद था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मेरे साथ उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली जी और सुषमा जी को मेरी यात्रा में शामिल हुए, उनको भी जेल में डाल दिया। तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में जम्मू कश्मीर में रोक लगा दी। आज उसी तिरंगे की ताकत मोदी सरकार में इतनी बढ़ गई है कि यूक्रेन की भूमि में हिंदुस्तानियों के साथ साथ अन्य देशों के युवा भी हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोलकर निकल लिए सच। ये उभरते भारत की ताकत है। तभी टैगलाइन है, यही समय है। तो सही समय का सदुपयोग भी करेंगे। और इंडियाज डेकेड, दिस इज इंडियाज टाइम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, G20 की प्रेसिडेंसी हो, चंद्रयान मिशन हो, एशियन गेम्स की सफलता हो, 220 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात हो, या 157 कंट्रीज को मेडिसिन, वैक्सीन से लेकर पीपी किट्स देने का काम दुनिया का एक देश कर पाया, उसका नाम भारत है। तो दुनिया भर में भारत की धूम भी है मेरे भाई और बहनों। इसलिए हमें ये सब चंद्रयान मिशन से लेकर ऑपरेशन गंगा तक ये भारत की सफलता है। और इसलिए जो आप इसमें देखेंगे, ये दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं। जहां एक और इटली की प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी जी माने ना माने, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे प्रिय नेता हैं। और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मोदी जी आप अमेरिका में इतने लोकप्रिय हो कि मुझे भी आपके ऑटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है। ये आज भारत के नेता का वो कद बड़ा है। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव की बात है मेरे भाई और बहनों। दुनिया भर के बड़े बड़े अवार्ड्स मोदी जी को मिले। बेस्ट कंट्री का जो सर्वोच्च अवार्ड था वो भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा क्षण वो था कि पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोदी जी का स्वागत करते हुए उनके पांव छूकर गले लगा लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पूछा वहाँ पर कि आपके देश में जिसको आप बहुत मानते हो उसके बारे में क्या होता है? तो एम्बेसडर ने वैसे बताया कि हमारे यहाँ तो पाँव छूने की आदत है, बुजुर्गों के पाँव छूते हैं, बड़े लोगों के पाँव छूते हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये करने वाले हैं, लेकिन कितना सम्मान होगा मन में। उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ संकट था, कोविड था, तब किसी दुनिया के बड़े देश ने नहीं देखा, मोदी जी ने उस समय भी मदद पहुंचाने का काम किया था, मेरे देश के लोगों को बचाने का काम किया। युवा साथियों, अगर आप ये देखेंगे, ये क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। सिल्क रूट का नाम सुना आपने? क्या गाने बजाने वाला कि दूसरा? कौन सा दूसरा, कौन सा है बताओ?
ट्रेड का रूट था ना, कब था? अब अगला सवाल आपके लिए कल से यही है, जाके आज ही इंटरनेट पे सर्च करना सिल्क रूट कब था और भारत का दुनिया के ट्रेड में कितना बड़ा हिस्सा था और कैसे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने लूट के हमें किस स्थिति तक पहुंचा दिया और उसके बाद जितनी सरकारें आई वो क्या करती रही। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, ये भविष्य के 1000 साल कम से कम उसके लिए एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो भारत से शुरू होकर मिडिल ईस्ट से होकर यूरोप तक जाएगा। भारत के ट्रेड को कम से कम 50% वृद्धि मिलने की आशंका है। ये किसी और ने संभव नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने करवा कर दिया है। और आप जैसे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कोई काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक फार्मर से लेके एक ट्रेडर, एक मैन्युफैक्चरर तक सबको इसका लाभ मिलने वाला है। रॉबस्ट आउटकम अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। जो मॉर्गन स्टेनले से लेके एसबीआई की रिपोर्ट से लेके अन्य ने कहा है कि भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। ये हेडलाइंस आज भारतीय बना रहा है, वर्ल्ड बैंक से लेके बाकी सब। अब आप ये देखिए हम इंडेक्स क्या कहता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम कैसे आगे बढ़े, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम कैसे आगे बढ़े। और यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम 8वें नंबर पे थे, 3रे नंबर पर आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 2रे नंबर पे आ गए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने जो कदम उठाए वो 142 में से 63वें नंबर पे हम आ गए हैं। ग्रोथ इंडिकेशन साफ दिखाती है कि अगर बिजली का भी मैं बात करूं, आज देश के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम भी किया। इकोनॉमिक ग्रोथ आज सब तरफ है और सैटेलाइट फोटोज हमें दिखाती है कि कैसे देश के कोने कोने में इलेक्ट्रिफिकेशन होने से लेकर डेवलपमेंट कैसे पहुंच रही है। यही नहीं मेरे युवा साथियों, भारत का जो सक्सेस है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, उसकी हेडलाइन, क्योंकि अखबार जो लिखती है 2013 में लिखती थी कि भारत दुनिया के स्लोएस्ट रेट में से एक उसमें से है। आज क्या लिखती है, इंडिया टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसी साल नहीं, अगले 3 साल तक के लिए भी। उस समय लिखते थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज टू 20 ईयर लो, आज लिखते हैं पीएमआई हिट्स 31 मंथ हाई। उस समय लिखते थे बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 50% उसमें वृद्धि हुई, आज लिखते हैं बैड लोन्स फॉल्स टू 10 ईयर लो बाय 3.9%। ये बदलाव है। जब मैं कहता था रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, आज ये हेडलाइंस में उसको देखने को मिलता है कि कैसे देश में हर क्षेत्र में एक बदलाव आया है। और ये क्या है, नीचे से पढ़ के बता रहे हो, कहां से बन के आया है? ये आत्मनिर्भर भारत का एक और उदाहरण है कि ये वॉरशिप किसी और ने नहीं, जहां से फाइटर जेट उड़ भी सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, बढ़ते भारत के कदम है मेरे भाई और बहनों। ये लास्ट स्लाइड है 9 साल और 9 बदलाव विकास के। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम भारत में चला, बैंक खातों से लेकर मुद्रा योजना तक, महिलाओं को इज्जत घर देने से लेकर महिलाओं को घर, पक्के मकान देने तक, करप्शन फ्री लोन या करप्शन फ्री डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके 32 लाख करोड़ रुपये उनके खातों में डाला गया, जिससे 3 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार का बचा है। 12 करोड़ जॉब्स एमएसएमई सेक्टर में क्रिएट की गई। तेजस जैसे 100 हम लोग तेजस बना रहे हैं, मार्क 1, जो भारत का एक फाइटर जेट है। चंद्रयान मिशन सफल रहा, अब चंद्रमा तक ही नहीं रुकना है, सोलर मिशन के लिए आदित्य L1 भी बिल्कुल सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को एक जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 35 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है, मात्र 12 रुपये में 2 लाख रुपए का बीमा है। और 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर बने जब मुद्रा योजना से उनको लाभ मिला है। भाई और बहनों, तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये भारत की उपलब्धियां हैं। लेकिन भारत की उपलब्धियां तब है जब भारत के लोगों ने सही जगह वोट डाला, सही सरकार को चुना और सही नेता ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आपका एक सही निर्णय, आपका एक सही वोट भारत को फिसलती हुई, थकी हुई अर्थव्यवस्था से
लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है और भारत का एक नेता दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरता है। ये सब भारत के वोटर्स के कारण हुआ है, भारत की जनता के कारण हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। युवा साथियों से कहता हूं, जो भी आपको एक क्षेत्र अच्छा लगे, जहां आपको लगता है यू रियली अग्री विद द गवर्नमेंट, और इनके साथ आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पर जरूर शेयर करें, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। लेकिन युवा साथियों, देश केवल सरकार नहीं बनाती, समाज सरकारें मिलकर बनाती हैं, और ये तो युवाओं का देश है, दुनिया के सबसे बड़ी युवा आबादी। यू आर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो डोंट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट एक्टिंग टुडे। दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट. We should not delay it. And if you want to see change in any part, in any area, begin with yourself, begin at home. You should be the change maker. Let us start, let us join hands and work for that. Pick up one area where you want to see the change. From cleanliness drive to education to healthcare to any other sector to sports or maybe environment. Your area of interest. Pick one area where you want to see the change. And be the change maker for the next 25 years. ये अमृत काल की शुरुआत है। भारत के 75 साल आज़ादी के हुए, जब 100 साल होंगे उससे पहले हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सही समय है